محکمہ صحت فیصل آباد کی مبینہ نااہلی، 50% سے زائد مراکز صحت میں سہولیات کا فقدان۔ ضلع بھر میں ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت علاج کی سہولت فراہم کرنے والے 103 مراکز صحت میں سے 58 فیل قرار دے دیے گئے۔ مراکز صحت میں ادویات اور انجیکشن کی کمی، ڈیلیوری کے لیے آلات نایاب، اسٹیرلائزیشن کے لیے فراہم کردہ آٹو کلو غیر فعال ہونے کا بھی انکشاف۔ مانیٹرنگ ایویلیویشن اسسٹنٹ کی نشاندہی پر محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے جون میں صحت کی عدم فراہمی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ محکمہ صحت فیصل آباد کی مبینہ نااہلی، 50% سے زائد مراکز صحت میں سہولیات کا فقدان۔ ضلع بھر میں ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت علاج کی سہولت فراہم کرنے والے 103 مراکز صحت میں سے 58 فیل قرار دے دیے گئے۔ مراکز صحت میں ادویات اور انجیکشن کی کمی، ڈیلیوری کے لیے آلات نایاب، اسٹیرلائزیشن کے لیے فراہم کردہ آٹو کلو غیر فعال ہونے کا بھی انکشاف۔ مانیٹرنگ ایویلیویشن اسسٹنٹ کی نشاندہی پر محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے جون میں صحت کی عدم فراہمی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ مزید جان لیتے ہیں عزادار حسین سے۔ عزادار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ آج بالکل مانیٹرنگ ایولیوشن اسسٹنٹ کی جانب سے ماہ جون 2023 کی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور اس میں ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت جو چلنے والے بنیادی مراکز صحت ہیں، 58 بنیادی مراکز صحت کو جو ہے وہ فیل قرار دیا گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ کہیں پہ آٹو کلیو کا ایشو ہے، کہیں پہ انسٹرومنٹ کا جو ہے وہ ایشو ہے، اور کہیں پہ میڈیسن نہیں ہے، اور اس سمیت دیگر جو ایشو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ماں بچہ صحت پروگرام ڈاکٹر خادم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خادم صاحب بتائیں، رپورٹ جاری ہوئی ہے؟ جی ہاں، یہ مانیٹرنگ ایولیوشن اسسٹنٹ جو آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس بار جو لاسٹ منتھ کی رپورٹ دی ہے، جس میں 58 جو بنیادی مراکز صحت ہیں ان کو فیل قرار دے دیا گیا۔ اب فیل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جیسے آٹو کلیو ہے یا انسٹرومنٹ ہے یا میڈیسن نہیں ہو۔ اب ایک الیکٹرانک چیز ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم ایک چیز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آٹو کلیو بھی ایک ہوتا ہے، اگر کسی کا بٹن خراب ہو گیا ہے آن دی اسپاٹ، تو آئی تھنک کہ اس کو فیل نہیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو وارن کر دیا جائے کہ آپ ہمیں ایک دن میں یا آدھے گھنٹے میں یا گھنٹے میں وہ چیز ریپیئر کروا کر ہمیں دکھائیں تو ہم اس کو پاس کر دیں۔ تو ان کی طرف سے ہمیں کوئی لینینسی نہیں دی جا رہی۔ تو میری مختلف بنیادی مراکز صحت کے انچارجز سے پلس ہمارے ڈی ایم صاحب سے بھی ڈسکس ہوئی ہے۔ انہوں نے جتنی بھی کمپلائنسز تھی، جس جگہ پر آٹو کلیو خراب تھے، ان کے آئی ایچ اوز کو بھی بلایا، اور جو چیزیں ہماری ڈسکرپنسی تھی یا ڈیفیشنسیز تھی وہ ہم نے فل کر دی ہیں۔ جتنے بھی سینٹر ہیں ان میں مائنر ایشوز ہیں، میجر ایشو کوئی نہیں کہ کوئی چیز بالکل نہ ہو۔ چیزیں ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے، ایون مائنر پیراسٹامول سیرپ۔ آئی تھنک کہ کوئی ایسا سینٹر نہیں ہوگا جہاں پر صرف پیراسٹامول نہ ہوگا۔ آن اسپاٹ وزٹ کے دوران اگر ایل ایچ وی روم میں پیراسٹامول سیرپ ختم ہو گئے ہیں تو وہ اٹھا کر ادھر وہ رکھ سکتے تھے۔ آٹو کلیو کا فالٹ مائنر فالٹ ہوگا، بٹن کا ایشو ہوگا، وہ بھی بن سکتا تھا۔ انسٹرومنٹ اب ایسے ہے کہ ہر سینٹر پہ 3 ڈیلیوری سیٹ ہوتے ہیں۔ ان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اسٹرلائزڈ ہونے چاہیے۔ اسٹرلائز اگر نہیں ہوئے تو وہ آپ کا سینٹر فیل ہو جائے گا، تو انہوں نے پھر اس کو دے دیا ہے کہ وہ نہیں تھے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ادھر نہ ہو۔ ہر سینٹر پہ ہم نے فون کر کے پوچھا ہے، ڈیلیوری سیٹ اور ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ جس جگہ پر ڈیفیشنسیز تھی وہ ہم نے پوری کروا لی ہے۔ ساشوں کا ایشو ہے، RUTF ساشے جو تھے وہ ہمارے پاس نو ڈاؤٹ پچھلے مہینے آئے ہیں، ہماری ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکی کیونکہ ہماری جو بجٹ ہے وہ پچھلے مہینے تک وہ بند تھی، جس کی وجہ سے ہماری ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ اس مہینے میں وہ سارے سینٹرز جو ہیں RUTF پہ، جو ہمارے OTP سائڈ جو نئے بچے جو کمزوری کے حامل ہوتے ہیں، ان میں RUTF ہم ودن ڈیز میں وہ پورے کروا دیں گے۔ RUTF جو ہے وہ کیا موجود یہاں پہ پڑے ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں اگر بر وقت اس کی منتقلی نہ کی؟ جی ہاں، نہیں، RUTF کی ایک تو ڈیٹ وہ لانگ ڈیٹ ہوتی ہے، 4 5 سال کی ہوتی ہے، ان کی کنزمپشن ہوتی ہے۔ تو آج تک ہمارے پاس کوئی بھی RUTF ایکسپائر نہیں ہوا۔ جو نیئر ایکسپائر ہوتے ہیں، جو 4 5 سال پہلے آئے تھے، ان کو ہم کنزیوم کروا لیتے ہیں۔ جی اچھا، بالکل RUTF عزادار حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ جنگ پولیس پر غیر پیشہ ورانہ رویے کا الزام، THQ ہسپتال کے ڈاکٹر سراپا احتجاج بن گئے۔ PMA کی جانب سے محدود وقت کے لیے OPD کا بائیکاٹ کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، کیا کہنا ہے ڈاکٹرز کا؟
بالکل جنگ میں پولیس کے مبینہ ناروا رویے کے خلاف ڈی ایچ کیو اسپتال میں پی ایم اے کی جانب سے آج جو ہے 2 گھنٹے کی ہڑتال کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، جس میں او پی ڈی کا جو ہے بائیکاٹ بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے پریزیڈنٹ پی ایم اے جو ہیں ڈاکٹر اعجاز سلطان میں سے موجود ہیں، سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا تمام تر جو ہے کیا تحفظات ہیں ڈاکٹرز کو اس حوالے سے اور کیا مطالبات پیش کیے گئے ہیں پی ایم اے کی جانب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑا سا میں بریف بتا دوں کہ کل ایک ملزمہ ہے تو وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں، تو ان کا وہ ڈیمانڈ تھی کہ ایم ایل سی ان کا کروانا ہے، تو ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ڈیوٹی پہ تھے وہ ان کا ایم ایل سی کر رہے تھے، لیکن وہ ڈیورنگ ایم ایل سی تو جو پولیس ڈپارٹمنٹ جو اے ایس آئی ان کے ساتھ تھے وہ بار بار انٹرپٹ کر رہے تھے اور ہراس کر رہے تھے ہمارے ڈاکٹرز کو اور پریشان کر رہے تھے، اور جو ایم ایل سی ابھی وہ لکھ رہے تھے تو جی ہمیں یہ بھی نہیں پسند، ہمیں یہ بھی نہیں پسند۔ اب دیکھیں جو ایم ایل سی ڈکلیئر کرنا ہے یا رائٹ ڈاؤن کرنا ہے وہ بینگ اے ڈاکٹر وہ ہمارا کام ہے، وہ ہماری ڈومین ہے، وہ ہماری اتھارٹی ہے۔ اگر آپ کو ہمارے ایم ایل سی پہ اعتراض ہے تو بہت سارے فورم موجود ہیں، آپ اس پہ چلے جائیں، بورڈ میں چلے جائیں، پروونشل بورڈ میں چلے جائیں، تو وہ آپ کا حق ہے، رائٹ ہے، لیکن آپ ہمارا جو ہم لکھ رہے ہیں، جو ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں اس کے آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے۔ تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور ایم ایس صاحب کو ہم نے تمام مطالبات بھی پیش کیے ہیں، پھر ہماری پریس ریلیز بھی ابھی ہم جاری کریں گے پی ایم اے کی جانب سے، تو جب تک ہمارے مطالبات منظور۔ آج ہم نے ٹوکن اسٹرائک کا اعلان کی ہے 2 آورز کی فرام 12 to 2 PM، تو اگر مطالبات ہمارے اویس منظور ہمیں نہیں۔ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ میں انڈر پاس کے پمپس خراب، پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، بارش کے سبب پانی کی مقدار میں مزید اضافہ ہو گیا، انڈر پاس ٹریفک کے لیے مکمل بند ہو گیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کریں تفصیلات سے۔ جی بالکل، چند ملی میٹر بارش کے بعد جھنگ میں اس وقت بھی پانی جو ہے وہ موجود ہے، کہیں پر سیوریج ملا پانی، بارشی پانی موجود ہے، تو کہیں پر صرف برساتی پانی نہیں جو ہے وہ جل تھل ایک کر رکھا ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں گوجرا روڈ جو انڈر پاس ہے اس میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، ارباب آپ کو میرے عقب میں دکھا بھی سکتے ہیں کہ اس وقت کس قدر جو ہے وہ پانی موجود ہے، اور اس کی نکاسی کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی نکاسی کے لیے لگائے گئے جو ٹیوبلز ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر بند ہیں، جس وجہ سے پانی کی نکاسی نہیں ہو پا رہی۔ وہ تمام مسافر جنہوں نے پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے اس انڈر پاس سے گزرنا ہوتا ہے، وہ اس انڈر پاس کا بھی جو ہے وہ رخ نہیں کر پا رہے۔ دوسری جانب جو شہر کے علاقے ہیں جن میں یوسف شاہ روڈ ہے، جن میں فوارہ چوک ہے، صدر چوک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کے اندرون علاقے جن میں ریل بازار ہے اور کچا کوٹ روڈ سمیت فیصل آباد روڈ، نواز چوک اور گوجرا روڈ، ٹوبا روڈ ابھی تک جو ہے وہ ان جگہوں پہ پانی موجود ہے۔ اس وقت متعدد علاقوں میں بجلی بھی بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ میونسپل کمیٹی کے جو پمپنگ اسٹیشن رمضان مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بارش کے بعد سینیور کے نشیبی علاقے زیر آب، بارش رکنے کے 4 گھنٹے بعد بھی گڑھ محلہ اور اندرون شہر سے نکاسی آب یقینی نہ بنایا جا سکا۔ مزید جان لیتے ہیں کمیل حیدر سے۔ جی کمیل، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں شہر چنیوٹ کے مین گڑھا چوک کے اندر۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش اور پوری رات وقفے وقفے سے جاری رہنے والی بارش کی وجہ سے پورے شہر کے اندر پانی کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح گڑھے چوک کے اندر بھی پانی کھڑا ہو گیا، اور گڑھے چوک میں سب سے آخر میں پانی نکلتا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں، رکشے خراب ہو رہے ہیں، اور ابھی ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جن کی گاڑی خراب ہوئی ہے۔ جی السلام علیکم، میں کوڑے سے آیا ہوں، اور صبح کا جب سے ادھر آئے ہیں کوئی انتظامیت نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال والا نہیں، گاڑی ہماری خراب ہے ادھر، تو پانی کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے، یہ آئے ہماری ہیلپ کے لیے، ان کا بہت شکریہ، ہماری ہیلپ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو پیچھے سے دکھا سکے تو پورا گڑھا محلہ اس وقت ڈوب چکا ہے۔ شہر کے اندر یہ وہ علاقہ ہے جس کو کیا نام ہے، پانی خشک ہونے میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ 4 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اب تک پانی خشک نہیں کیا جا سکتا۔ باقی دیگر محلوں کی بات کی جائے تو اندرون شہر کے اندر نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ ٹی ایم اے کے عملے کی جانب سے پانی کی کمیل نکاسی حیدر کی ہمیں کوشش اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ بارش کے باعث فیصلوں کا بڑا فیصلہ، تمام ڈویژن دفاتر کو 200 kV کی 50,000 ٹرانسفارمرز جاری کر دیے گئے۔ تمام دفاتر کو خراب ٹرانسفارمرز فوری تبدیل کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ فیصل آباد کا موسم خوشگوار ہوا تو خواتین اور بچوں نے پارکس کا رخ کر لیا۔
बच्चे पार्क्स में झूले झूलते दिखाई दे रहे हैं। खवातीन भी बच्चों के साथ मौसम से लुत्फानंदोज होती जा रही हैं। मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया। आज शहरी जो हैं बच्चों की भरपूर फरमाइश पर और जिद पर पार्क्स में आप पहुंचे हैं। आज मेरे साथ एक नन्ही बच्ची भी मौजूद है जो पार्क में आई है, इसकी जानिब चलते हैं और इससे जानते हैं। आज जी बताओ, आप पार्क में आए हो, कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं झूले लेने के लिए आई हूँ और अपने मम्मा पापा से जिद करके आई। जी बिल्कुल, बच्चों से तो जाना चाहते हैं, खातून मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी बताइएगा कि मौसम जब अच्छा होता है तो घर में रहने को दिल नहीं करता, तो आप पार्क में आई हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है। इतने दिनों की गर्मी के बाद आज अच्छा मौसम मिला है, एंजॉय करने को मिला है। बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, खुद भी एंजॉय कर रहे हैं, घरों से बाहर निकले हैं। आज बिल्कुल, खवातीन का कहना है कि आज जो मौसम जो है बहुत खुशगवार है, तो मौसम को एंजॉय करने के लिए आज पार्क में आए हैं। बच्चों की बहाने हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। चिन्योट में बारिश खत्म होते ही दरिया चनाब पर पिकनिक मनाने वालों का रश लग गया है। फैमिलीज की बड़ी तादाद दरिया किनारे पहुंच गई है। कश्ती रानी से भी लुत्फ उठाने लगे हैं। बात कर लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, आज ही चिन्योट में सुबह से होने वाली जो बारिश है वो थम चुकी है और बारिश थमने के बाद फैमिलीज की बड़ी तादाद दरिया चनाब पर पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। खाने पीने के साथ साथ यहाँ पर जो फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, खास तौर पे वो कश्ती की इस वक्त यहाँ पर सवारी कर रहे हैं दरिया चनाब में। इस वक्त हम महवे सफ़र हैं, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज के इस मौसम के बारे में, इस पिकनिक के बारे में उनका क्या कहना है। बेटा, आप कहाँ से आए हो? कांडीवाल। तो क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो मौसम को? यस। और फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से आई हैं? फैसलाबाद। तो कैसा लग रहा है सारा ये? बहुत अच्छा मौसम है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? डी टाइप से। कैसा लग रहा है ये चिन्योट में आके? बहुत अच्छा। क्या कर रहे हो यहाँ पे? खा पी रहे हो, झूले ले रहे हो? बड़ा मुख्तसर बोल रहे हैं बच्चे। हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ये आपको बताएं, रोबोटिक सिंह के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज घी, आटा और चीनी गायब। शहरी सस्ते आटे और घी को तरस गए। दूर दराज से किराया खर्च करके आते हैं और खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। शहरियों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। मजीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, आखिर घी आटा क्यों नहीं मिल रहा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा, घी और चीनी सब गायब कर दिया गया है। इस हवाले से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि दूर दराज के इलाकों से जो है वो सस्ती चीनी, आटा और घी जो है वो उसको खरीदने के लिए यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जो है वो ज़लीलो ख्वार किया जाता है। शहरियों का कहना है कि सस्ता आटा और चीनी और घी जो है वही यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद नहीं है। बाकी जो मौजूद अशियाँ हैं वो बाजार से भी ज़्यादा रेट पर जो है वो फरोख्त की जा रही हैं। इस हवाले से खतून मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा कि आपको आटा, चीनी और घी मिल रहा है? नहीं, हफ्ता हो गया नहीं आए हैं तो इदा ही चले जाने हैं। किराए ते रक्षा करा के आए हैं स्पैशल, फिर फायदा आटा लैन दा, ते इस करके फिर हफ्ता हो गया आटा ना चीनी दूसरियां ऐसे रेट ते बाजार दी रेट ते चीज़ां मिलदियां पईयां। ते इन्हां नूं चाहीदा कि फिर जे नहीं आटा मिलदा पिया कोई चीज़ चूज़ ते सानूं फिर ये बंद कर देन स्टोर नूं। इंतजामिया की जानब से ऐसे आटा जब आप तलब करते हैं तो वो उनकी जानब से क्या बहाना लगाकर आपको जो है वो वापस भेज दिया जाता है? यही कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, इदा करके टाल देंगे। फिर बाद हफ्ता हो गया इदा खज्जल खराब होकर जा रहे हैं। फिर इनू बंद कर दो, जे अगर नहीं मिल सकता 5 बच्चे कितने लैके जाइए, की करिए? कुछ कर सकते हैं नहीं, असी मुल लैके खा नहीं सकते, मजदूरी मियाँ करते हुण की करिए? फिर तुसी आप ही दस दो। बिल्कुल, शहरी परेशान है। उनका ये कहना है कि सब्सिडाइज अशिया जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो मौजूद नहीं है। तो यूटिलिटी स्टोर का मकसद क्या रह जाता है, ये यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया से उनका सवाल है। और उनका इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो सब्सिडाइज घी और चीनी और आटा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद डिवीजन के 99 सरकारी कॉलेजेस में से 45 कॉलेजेस मुस्तकिल प्रिंसिपल से महरूम। महकमा हायर एजुकेशन ने इदारों में मुस्तकिल सरबराहान की तैनाती के लिए दरख्वास्तें मांग ली हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो 45 कॉलेज फैसलाबाद डिवीजन के ऐसे हैं जहाँ पर अरसा दराज से प्रिंसिपल की सीट खाली है। कहीं पर रिटायर हो चुके प्रिंसिपल और कहीं पर जो नया था वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके बाद से मुस्तकिल प्रिंसिपल जो है वो तैनात नहीं किए जा सके। मजमूई तौर पर 99 कॉलेजेस हैं जिनमें से 45 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें ताहाल प्रिंसिपल तैनात नहीं हो सके, जिस पर बिलाखिर
बारी आ गई है वहाँ पर पिस्तौल तैनात करने की। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मौजूद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। इनमें फैसलाबाद के जो काफ़ी मारूफ कॉलेज हैं वो भी शामिल हैं। गवर्नमेंट इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज की सीट खाली है, गवर्नमेंट म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज अब्दुल्लापुर की सीट खाली है, इस तरह गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज समनाबाद, मिलर टाउन और इसके साथ ही गुलिस्तान कॉलोनी और गुलशन कॉलोनी समेत समुद्री और मुख्तलिफ जो सरकारी कॉलेज हैं वहाँ पर प्रिंसिपल की सीटें खाली हैं, जिन पर 14 जुलाई तक उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। स्क्रूटनी का अमल जो है वो 14 जुलाई से 21 जुलाई तक होगा और 24 जुलाई से बाकायदा तौर पर जो अहल उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे उनके इंटरव्यूज किए जाएंगे, जिसके बाद अगस्त में अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो की जाएंगी ताकि इन इदारों में जो इंतजामी मसाइल चल रहे हैं तदरीसी तौर पर जो मामला डिस्टर्ब हैं उनको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि 45 कॉलेज में मुश्किल दरबार ना होने से काफ़ी वहाँ पर जो बदनज़मी पाई जा रही है इस्लामी तौर पर और माली तौर पर भी काफ़ी सारे ऐसे मामला हैं जो कि मुश्किल है, इसके बगैर वो निपटाए जाना अब वो खासा मुश्किल है बना हुआ है। जी जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के तहत फंड जारी हो गए हैं। 36 अजला के लिए 36 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों के बायस से सुबह के 36 अजला में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए 36 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद, टोबा, जंग और चनियोट के लिए फीकस जो है वो 1-1 करोड़ के फंड जो है वो जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानब से सुबह बढ़ के डिप्टी कमिश्नर में फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर को भी मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो तमाम जो है वो रेस्क्यू के मामलात को जो है वो बखूबी सरंजाम देंगे और हालिया मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ जो है वो रेस्क्यू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। छतों के गिरने के वाकयात और दीगर जितने भी रेस्क्यू के जो रिलेटेड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें जो है वो बिला ताखीर और बिला तोतल फामी के हवाले से जो है वो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए 36 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। किया मोटरवेज ने गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियां 2 से 4 लाख रुपए तक महंगी कर दी गई। पिकांटो 80 की कीमत में 2 लाख रुपए का इजाफा 38,25,000 रुपए की होगी। स्टॉनिक एक्सप्रेस 1,20,000 रुपए इजाफे से 60,50,000 रुपए की हो गई। स्पोर्टेज अल्फा 2,50,000 रुपए इजाफे से 73 लाख। स्पोर्टेज FWD 2,50,000 रुपए इजाफे से 81,90,000। स्पोर्टेज AWD 2,50,000 इजाफे से 88,20,000। स्पोर्टेज ब्लैक एडिशन 2,50,000 रुपए इजाफे से 93 लाख रुपए की हो गई। सोरेंटो 2.4 LFWD 4 लाख रुपए महंगी 1 करोड़ 8 लाख रुपए की हो गई। सोरेंटो 3.5 LFWB 4 लाख रुपए महंगी 1 करोड़ 17,90,000 की हो गई है। किया मोटर्स की जानिब से गाड़ियों की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में 1 बार फिर इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियां 2 से 4 लाख रुपए तक महंगी कर दी गई। पिकांटो 80 की कीमत में 2 लाख रुपए का इजाफा 38,25,000 रुपए की हो गई। स्टॉनिक एक्सप्रेस 1,20,000 रुपए इजाफे से 7,50,000 रुपए की हो गई। स्पोर्टेज अल्फा 2,50,000 रुपए इजाफे से 73 लाख। स्पोर्टेज FWD 2,50,000 रुपए इजाफे से 81,90,000। स्पोर्टेज AWD 2,50,000 इजाफे से 88,20,000। स्पोर्टेज ब्लैक एडिशन 2,50,000 रुपए इजाफे से 93 लाख रुपए की हो गई। फैसलाबाद डिवीजन में जनरल पोस्ट ऑफिस का बड़ा इकदाम। डाक के तरसीली निज़ाम को बेहतर और तेज बनाने के लिए GPO मुतहरक। साइकिल सवार डाकियों में 29 मोटरसाइकिलें तकसीम कर दी गई हैं। पोस्ट में हजरात को फ्यूल के अखराजात भी दिए जाएंगे। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीज़न में जनरल पोस्ट ऑफिस की जानिब से बड़ा अहसन इकदाम किया गया है। जो पोस्टमैन गर्मी के दिनों में साइकिल पर खार होते थे उनकी खारी को अब दूर कर दिया गया है। 29 के करीब मोटरसाइकिल तकसीम की गई हैं पोस्टमैन में, ताकि जो डिलीवरी है, जो डाक का सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके और जो मुतलका लोग हैं जिन तक डाक पहुँचनी है वो जल्द अज जल्द पहुँच सके। इसी हवाले से बात करने के लिए डिविजनल सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विसेज कुरातुल ऐन मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम,
बड़ा ज़बरदस्त इकदाम किया गया। 29 के करीब मोटर बाइक्स दी गई हैं, इनका फ्यूल भी दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे और इससे क्या बेहतरी आएगी मज़ीद डाक के निज़ाम? जी बिल्कुल, डाक के निज़ाम में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। आज हम 29 मोटरसाइकिलें तकसीम कर रहे हैं 29 डाकियों में। डाकिये के पास जब तक जाने आने के लिए बेहतर कोई सहूलत मौजूद नहीं होगी, तब तक डाक की तरसील मौसर अंदाज में नहीं की जा सकती। सो डाकिये के पास अब मोटरसाइकिल होगी और उसको माहाना पेट्रोल भी दिया जाएगा, ताकि वो डाक को मुनासिब अंदाज में, तेज़ अंदाज में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। मोहम्मद अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद शहर में ट्रैफिक फ्लो, रोड डिजाइनिंग को बेहतर बनाने के लिए टीपा को फाल बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। DGFDA की जेर सदारत अहम इजलास, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर टीपा के कंसल्टेंट भी इजलास में शरीक हुए। पहले मरहला में 2 शाहराहों के मसाइल की बेहतरी के लिए रीडिजाइनिंग का फैसला। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रोड डिज़ाइनिंग होगी, टीपा को मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आज इसी हवाले से एक अहम मीटिंग जो है वो मुनक्किद हुई है, जिसमें DGFDA CTO फैसलाबाद जो हैं इन्होंने ना सिर्फ मुशावरत की है बल्कि टीपा के हवाले से रोड डिज़ाइनिंग, ट्रैफिक स्टडी के हवाले से जो है इक़दामात का आगाज़ किया है। हमारे साथ भी मौजूद हैं DGFDA चौधरी मोहम्मद आसिफ, इनसे भी पूछेंगे। टीपा एक कहने को पुराना इदारा है, 2014-15 में ये बना था, लेकिन समहाउ ये फंक्शनल नहीं हो सका। अब हमने शॉर्ट टर्म कंसल्टेंसी ली है, एक डॉक्टर साहब को हमने नर्स से हायर किया है। डिसीजन भी इसमें यही हुआ कि नेक्स्ट मीटिंग जो करेंगे हम उसमें हम PHP को भी इनवाइट करेंगे, 1112 को इनवाइट करेंगे, कॉरपोरेशन को इनवाइट करेंगे, वो सारे लोग आ जाएंगे। फिर हम अपनी प्रपोजल्स फर्म अप करके और बाय द टाइम कोई ना कोई इनिशिएटिव लेके मॉडल के तौर पे कोई एक इनिशिएटिव किसी रोड को, किसी इंटरसेक्शन को, किसी यू टर्न को वो बना के ताकि हम प्रेजेंट करने के काबिल हों, तो फिर हम कमिश्नर साहबा को ब्रीफिंग देंगे मुकम्मल। जी बिल्कुल, इस हवाले से ना सिर्फ फैसलाबाद की रीडिज़ाइनिंग जो है वो हो सकेगी बल्कि इसके साथ साथ जो मसाइल जिनका जिक्र किया जा रहा है। हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम शहादत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से फैसलाबाद में सेमिनार हुआ। डिवीजनल सदर सुन्नी तहरीक मोहम्मद आसिफ रजा काजी ने सदारत की। मजीद बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील। आज बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम आज शहादत सैयदना उस्मान गनी के सेमिनार के हवाले से इनकाद किया गया है, जिसमें तमाम ज़िम्मेदारान जो हैं उन्होंने शिरकत की है और सेमिनार की जो सदारत है वो डिवीज़नल सदर मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी की जानिब से की गई है। यहाँ पर जो डिवीज़नल सदर हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं सेमिनार के हवाले से। जी सर, बताइएगा, ख़ास तौर पर हज़रत उस्मान गनी वो सहाबी रसूल हैं, वो यार महबूब खुदा हैं कि जिनके लिए ख़ास तौर पर बैत रिज़वान जो है वो ली गई। ऐसे क्या वाक़यात हैं उनके हवाले से जो नई नस्ल को बताने की ज़रूरत है, ताकि आज के दौर के अंदर हमारी नई नस्ल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो ज़िंदगी मुबारक है उनसे आगाह हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 ज़िलहज्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का यौम शहादत है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इसी हवाला से आज से 3 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद कर रही है। तमाम सूबाई हल्काजात में आपकी शानों एहतराम को अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। साल सवाब की तकरीबात की जा रही हैं और ये पैगाम दिया जा रहा है, जिस तरह आपने भी सवाल में कहा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला वो हस्ती हैं कि जिनका दौरे खिलाफत क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए, मुसलमान हुक्मरानों के लिए मशअल राह है। हुकूमत को चाहिए कि आपकी खिलाफत के वाक़यात को और आपकी हयात तैयबा के वाक़यात को सिलेबस का हिस्सा बनाएं, ताकि हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें जो हैं उन वाक़यात को स्टडी करके उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप वो खुश नसीब हैं कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ यके बाद दीगरे आपके नकाह में आई, इसी वजह से आपको ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि नई नस्ल को जो खुलफाए सलासा हैं उनकी जो दौर खिलाफत है उसके बारे में आगाह करने के लिए ज़रूरी है कि उनकी जो दौर खिलाफत है उनको सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आने वाली नस्ल जो है वो ये भी सीख सके कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और ख़ास तौर पर हुक्मरान जो हैं उनको भी पता चल सके कि हुकूमत जो है वो किस तरह से चलानी है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पर बना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे इन्होंने बताया है कि सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए तमाम जो खुलफाए राशिदीन हैं उनकी हुकूमत के बारे में, ताकि नई नस्ल ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़िंदगियों से आगाह हो। फजील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।